اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و علیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک اصحا کتاب۔ شعبان کی میں کیا صرف بیان کروں، اس کی صفت رسول کا مہینہ ہے۔ کون رسول؟ افضل العالمین کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، کون رسول؟ جو محبوب خدا ہے۔ حبیب اللہ کا ٹائٹل کسی کو نہ ملا، رحمت للعالمین کوئی نہ بن سکا۔ اللہ اکبر، اس کا مہینہ ہو تو وہ کیسا مہینہ ہوگا، انسان اس کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتا۔ اب سوچے اللہ اس مہینے کو کتنی اہمیت دیا ہوگا کہ ان کا حبیب کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کا مہینہ ہے۔ اللہ کو عشق رسول کے ساتھ کائنات کا افضل ترین جو ہے، آپ سوچے کتنی فضیلت بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس میں بھی رسول ہماری مدد مانگ رہا، مگر رسول ہماری مدد مانگ رہے ہیں۔ رسول نے کیا اعلان کرتے ہیں؟ منادی کو اعلان کرواتا ہے۔ ہر رجب کی آخری میں، ماہ رجب کی آخری میں ماہ شعبان داخل ہونے والا ہوتا ہے تو رسول ندا دلاتے، ندا کہ میرا مہینہ ہے جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور میری محبت میں روزہ رکھے گا۔ دو نیت اہم ترین، اللہ کی قربت، شعبان مہینے کا روزہ کی نیت اللہ کی قربت، اور رسول کی محبت میں جو روزہ رکھتا ہے بہشت ان پہ واجب ہو جاتا ہے، بہشت واجب اس کو ہوگا۔ پھر کہتے تھے میری مدد کرو اس مہینے میں۔ یا رسول آپ کی مدد کیسے کرے؟ روزہ رکھ کے مدد، روزہ رکھ کے میری مدد کرے۔ ارے رسول کو کیا فائدہ ملے گا ہم روزہ رکھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں مشہور آیت ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کو کتنا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، رسول کے لیے ناگوارا ہے، برداشت نہیں ہے کہ ان کی امت کوئی مشکلوں میں جائے، ان کی امت کی تو کوئی تکلیف ہو، وہ بھی ان کو تکلیف محسوس کرتی۔ اتنی امت سے پیار، ابھی تو مومنین کے تو نہیں، صرف امت، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، پوری امت سے اتنی محبت کہ ان کی بہبودی کے لیے آگے آئے کیا، حریص علیکم۔ حریص، قرآن لفظ حریص استعمال کرتا ہے اس سورے میں، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت 128، یعنی حریص بری طریقہ بھی یوز ہوتا ہے، نیگیٹو اور پوزیٹو۔ حریص مال کے لیے حریص ہو، لالچ حکومت کے لیے لالچ ہو، مگر حریص علم کا حریص ہو، علم کا حریص ہو، نیکی کرنے میں حریص ہو، روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے حریص ہو۔ دیکھو پوزیٹو ہو گئی نا۔ رسول حریص علیکم، ان کی بہبودی کے لیے، مسلمانوں کی بہبودی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی ارتقاء کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے تڑپ رہے تھے، حریص تھے۔ اتنا عشق تھا امت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے عشق ہوگا اتنی میری مخلوق سے عشق ہوگا۔ رسول اللہ کا عشق اللہ سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو جتنا عشق اللہ سے ہوتا ہے اتنا بندوں سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو پھر سوچے کہ شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ ہو تو اللہ کیا کرتے؟ مولا علی سے پوچھا گیا شعبان کا مطلب کیا ہے؟ کہ شعبان کا مطلب ہے پھیلانا، پھیل جانا۔ کیا پھیل جانا؟ مولا کہتے نیکیوں۔ اللہ اتنی نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اس مہینے میں اتنی نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ 70 مرتبہ کو استغفار کرے گویا 70,000 مرتبہ کی۔ 70 درہم اگر کوئی صدقہ دیا گویا 70,000 درہم صدقہ دے دیا۔ 70 مرتبہ اگر کوئی تسبیح کیا گویا 70,000 مرتبہ تسبیح کر دیا۔ کہ اللہ نے نیکیوں کو پھیلایا ہے، توفیقات میں اضافہ کرتا ہے، ملائکہ کو زمین میں اتارتا ہے، کئی ملائکہ کو پھیلا دیتا ہے کہ نیکیوں کو پھیلاؤ، رحمت کو پھیلاؤ، برکت کو پھیلاؤ، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ نیکی کرے۔ یہ گرانڈ سیل کا مہینہ ہے، گرانڈ سیل اور جینوئن سیل، دھوکا والا سیل نہیں، خالی لیبل لگا، جینوئن سیل کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ اسی لیے آگا آیت اللہ
علی 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 آقا قاضی، بڑے بڑے مہاراجے کا بہجت کا استاد، خمینی کا استاد وغیرہ اتنا بڑا، وہ کہتے شعبان مہینے میں خبردار رہنا، شعبان کا مہینہ ہے، بیدار رہنا، اس کو فضول ٹائم میں بیکار نہ کرنا، اس کو ٹائم ویسٹ نہ کرنا، کیونکہ جو ٹائم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دی، اللہ قیامت میں پوچھنے والے ہم نے ٹائم کو کیسے گزارا اس دنیا میں، اللہ کی امانت جان کے اچھی طرح وقت کو گزارتا ہے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، روزے میں، تو فرماتے وہی فوائد دیکھیں گے جس نے ٹائم کی قیمت جانا ہے، وہی ان مہینوں میں شعبان مہینے میں وہ فوائد اٹھائے گا، غلط دوستی سے دور تو فائدہ اٹھائے گا، ارادہ پکا کرے کہ نہیں مجھے بدلنا ہے، میری بری خصلتوں کو بدلنا ہے، کیونکہ روزہ کا وہی فرمان ہے۔ مولا علی نے کہا روزے کا کیا کیا فائدہ ہے، مولا علی کا جس کو غصہ آتا ہو وہ شعبان کا روزہ رکھے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، جس کو ڈپریشن ہو، غم رہتا ہو، وہ روزہ رکھے شعبان مہینے کا، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، تو وہ صدقہ دے گا، روزے کے بدلے میں صدقہ دے گا نا۔ شعبان میں کوئی دعا نہیں، ابھی تسبیح جو رجب میں تھی، شعبان میں ابھی صدقہ دینا ہے، صدقہ کثرت سے دینا ہے شعبان مہینے میں، رسول کا مہینہ ہے، تو رسول کہتے میری مدد کرو روزہ رکھے، کیوں کیسے مدد ہوگی روزہ کا، ہمارے تک یہ تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا تو ہماری ترقی ہوگی، ہمیں ارتقا، جو رسول حریص علیکم جس لیے ہمارے لیے ہے، ہماری بہبودی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، وہ روزے میں چھپی ہوئی ہے، تو اسی لیے میری مدد کرو روزہ رکھے، تو رسول کو کیا فائدہ، اس کی امت اصلاح ہوگی، اس کی امت ترقی کرے گی، یہ رسول کو چاہیے، اسے کہ میری مدد کرو۔ مولا علی پھر فرماتے جس کو شیطانی وسوسہ تنگ کرتا ہو، یہ شک، اس میں شک، یقین کی منزل نہیں ہے، شک کی، وہ اس کو چاہے شعبان کے روزے رکھے، شعبان مہینے کے روزے رکھے، جو کسی دشمن ان کو ستاتا ہو، اس دشمن سے بچنا ہے، اس نیت سے نیت کرنی پڑے گی میں روزہ کیوں رکھ، بھلے واجب روزہ، بھلے قضا بھی ہو، مگر کئی خدا مجھے یہ فائدہ چاہیے اس روزے میں، قضا تو رکھ رہی ہوں مگر مجھے یہ فائدہ والا چاہیے کہ میرے دشمنوں کی شر سے مجھے تو بچا لے، تو مجھے اس روزے کے برکت سے دشمنوں کے شر سے بچا لے، دعا کرے۔ مولا نے 4 باتیں بتائی، امام جعفر صادق نے کیا بتائی، انہوں نے کہا کہ جو شعبان کو روزہ رکھے ان کے خوش اخلاق حاصل ہوگا، ان کی بری خصلتیں دور ہو کے اچھی خوبیاں پیدا ہوگی، جن کو اپنے بری عادتوں کو بدلنا ہے کہ شعبان میں روزہ رکھے، بری عادت سے تبدیلی آئے گی، نیت کرے کہ میری بری عادت کو ختم کرنا ہے، اگر میں زیادہ باتیں کرنے کی میری عادت ہے، خدا مند یہ میری عادت کو تو ختم کر، مختصر بات کرو جتنی ضرورت ہے، تو ہر کوئی اپنی عیب کو جانتا ہے، میں سینسیٹیو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے دل دکھتا ہے، خدایا میرا سینسیٹیو دور کر دے، میں اس روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں، میرا سینسیٹیونیس خود کر ختم کر دے، میں نیگیٹو ہر بات میں الٹا سوچتی ہوں، تو خدایا میری اس روزے کے برکت میری نیگیٹیوٹی ختم کر دے، مجھے پوزیٹیوٹی چاہیے، یہ چھٹے امام نے بتایا، اپنی اصلاح کے لیے روزہ ہے، خوش اخلاق پیدا کرنے، بری عادتوں کو بدل، نیت کرو تمہیں کیا چاہیے اس روزے کے، کیا فوائد چاہیے، نیکی پھیلی گئی ہے، اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے شعبان مہینے کے روزے کی بات ہے ہر زیادہ۔ تو پھر آپ نے پھر معصوم نے کیا بتایا کہ جو لوگ 3 روزہ رکھتے ہیں جنت تو واجب ہو گیا، بعض میں 1 ہی روزہ میں بھی جنت واجب ہو گیا، کیوں؟ اللہ کی قربت کے لیے اور رسول کی محبت اور رسول کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں۔ مگر 4 روزہ کوئی رکھ کے رزق کا پریشانی ہو، جس کو رزق، مال، بیماری، قصہ سب سنے ہو، جلدی سے قصہ سنا دوں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک اعرابی رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کہ میرے مال کی چوری ہو گئی، بہت مالدار تھا، آج بھیک مانگ رہا ہے، ایک روٹی نہیں، پوری چوری ہو گئی، دینار، درہم، جانوروں، مویشی، سب پوری چوری ہو گئی، اور میں یہ اس درد میں وہ بیمار پڑ گئے، اتنا زیادہ بیمار، بچے بیمار، یہ بیمار ہو گئے، یعنی ساری نعمت تو ایک ساتھ چھین لی گئی، ایک ساتھ آئے رسول کی خدمت، یا رسول اللہ یہ میں کیسے دوبارہ یہ نعمت واپس مجھے مل سکتی؟ کہ حضرت ایوب نے جو کیا تو کرنا، اللہ نے حضرت ایوب کی کتنی بڑی امتحان لی تھی، اس امتحان ہر چیز اٹھا لیا، حتیٰ کہ آخری میں بیماری، ایسی بیماری کہ شہر سے باہر جانا پڑا وغیرہ وغیرہ۔ صبر ایوب بھی کتنا مشہور ہے، تو کہاں پہلی بات تو تجھے جو میں عمل بتاؤں گا، صبر پہلی شرط،
सबर करना पड़ेगा, सबर से काम उठाना पड़ेगा, सबर के सिवाय कोई चारा नहीं है। हाई वही नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, दुख दर्द पे रोना धोना नहीं है, सबर से काम लेना है। पहली शर्त सबर से काम लेना है। और फिर तुझे क्या करना है, जो हजरत अय्यूब ने फिर क्या किया, पहले तो सब्र अय्यूब, पहले सबर किया, शिकवा शिकायत तो दर की ना, शुक्र खुदा कि तूने मुझे इम्तिहान के लायक समझा। फिर क्या करना है, तुझे शाबान में 4 रोजा रखना है, जो हजरत अय्यूब ने किया था, जिसमें 15 शाबान शामिल किया, 3 रोजा प्लस 1 15 शाबान, ये 4 रोजा तू रखेगा। और सुबह शाम पूरा महीना सुबह शाम 15 मर्तबा माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये इतनी आयत कहाँ है, सूरह कहफ। सूरह कहफ 18 नंबर का सूरा, 18 नंबर का सूरा, उनकी आयत 39 का थोड़ा जूस, पूरी आयत ने थोड़ा, अब देखिएगा माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो सूरह कहफ की 39 आयत, वहां तो किस्सा भी बयान किया, एक बद नजर से भी बचना चाहिए, तफसीर में मिलेगा आपको, हाजी नाजी में तो है कि माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हर रोज पढ़े 3 मरतबा, तो किसी की बद नजर नहीं लगे, चाहे अल्लाह ने हजारों हजारों लाखों नेमत दी हो, खूबसूरती दी हो, सब कुछ, कभी भी बद नजर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ना जादू कोई कर सकेगा, ना सुकून की जिंदगी गुजारे। तो ये सुबह शाम 15 मरतबा, सुबह शाम को 15 मरतबा, पूरा महीना हजरत अय्यूब ने ये किया, 4 रोजा 15 शाबान को मिलाकर, और ये सुबह शाम पढ़ा पूरा महीना, पूरा महीना। और एक महीने के बाद सारी चीजें मिल गई, तू भी जाकर वो बाकायदा किया, पूरा महीना किया, और रसूल की रिपोर्ट करते, या रसूलल्लाह मेरी सारी नेमतें मुझे वापस मिल गई, सेहत भी मिल गई, सब कुछ मुझे मिल गया रसूलल्लाह। तो इसीलिए एक किस्सा से हमें पता चलता है कि 15 शाबान का रोजा बहुत अहम है, और मजीद 3 रोजा, अगर 3 रोजा रखना हो तो मैं आपको आइडिया दूं कि अफजल तरीन 3 रोजा हर महीने में अफजल तरीन रोजा क्या, रसूल को पूछा गया हर महीने में मैं 3 रोजा रखना चाहता हूं, तो कौन से रोजा? रसूल ने क्या बताया, पहली जुमेरात, नौचंदी जुमेरात, बीच वाली बुध यानी 10 के बाद जो बुध आए, और आखिरी जुमेरात, ये 3 तो हर महीने अफजल तरीन है, और रजब शाबान में और अफजल बन जाता, और ज्यादा बुलंदी पे जा रहा। तो ये 3 रोजा रखो 15 शाबान, अगर 15 शाबान इसी को दिन में आ गए तो दूसरा एक ढूंढ लेना, तो जुमेरात, बुध आखिरी जुमेरात, ये अफजल तरीन। इंसान शैतान से बचता है, उससे शैतान से बचता है, ये सबसे बड़ी बात है, शैतान से बचता। तो अब हमने ये बात देखा पहले, तो अब हम रोजे की 4 रोजे की बात आ गई, रिस्क के लिए, बरकत के लिए, बीमारी की शिफा के लिए। और दूसरी बात कि अगर किसी ने हर पीर और जुमेरा, एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे माह शाबान में रोजा रखा, तो उसकी दुनिया की 20 हाजतें पूरी होगी, आखिरत की 20 हाजत, दुनिया की 20 हाजत, आखिरत की 20 हाजत पूरी होगी, 40 हाजत पूरी होगी दुनिया और आखिरत। अगर हर मंडे और हर थर्सडे रोजा रखा, उसमें नौचंदी भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आखिरी जुमेरात भी आ जाएगा, देखो डबल डबल ट्रबल ट्रबल फजीलत मिलेगी, कई गुना फजीलत मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 20 हाजत, 8 रोजे हो गए, ये 8 रोजा हुआ, 3 रोजा की बात हुई, 1 रोजे की बात हुई, 4 रोजे की बात हुई, 8 रोजा, अभी 9 रोजा। जिसने 9 रोजा शाबान पे, मासूम फरमाते जिसने 9 रोजा शाबान में रखा, उसके मुनकर और नकीरों के सवाल और जवाब से आजाद हो जाए, सुकून में होगा। जब मुनकर और नकीर सवाल पूछे, पहली रात कितनी मुश्किल है मुनकर और नकीर को आना, मुख्तलिफ सूरतों में आते हैं। तो फिर कोई 12 रोजा रखा, जिसने शाबान में 12, वहशत की रात, पहली रात, मरहूम की पहली रात, वहशत की रात, 70,000 मलाइका उनकी कब्र में आके उनको तसल्ली देगा, नूर ही नूर फैला देगा, उनको वहशत न होगी, ना कुछ घबराहट, कुछ नहीं होगा। तो पता चला कि जितने रोजा हम रखे, हमारा खुद के फवाइद है, सब फवाइद हम हासिल करेंगे। फिर 3 चीज का बहुत ख्याल करना है, अभी से स्टडी करें, आखिरी रजब के दिनों है अभी। 3 चीज बहुत अहम है कि रजब महीने में शाबान आने से पहले खुतबा शाबानिया, जो रसूल खुतबा देते थे आखिरी जुम्मे में रजब के, ताकि आखिरी जुम्मा शाबान की तैयारी करवाते माह रमजान में। मफातिल जिनान में हर किताबों में आपके खुतबा शाबानिया मिलेगा, जो रसूल
किस तरह कहते थे इसमें नेकियां का क्या सवाब है, सिले रहम का क्या है, माह रमजान में क्या, ये खुतबा शाबानिया स्टडी करना है बिफोर रमजान, एक ये बात। फिर मुनाजात शाबानिया, मौला अली ने तालीम की, क्या मुनाजात है शाबान में पढ़ने के, थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा पहले फिर ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन फिर अरब, 3-4 लाइन आज परसों दिस 3-4 लाइन, आहिस्ता आहिस्ता, पूरी नहीं पढ़ सकी मगर रटिफिकेशन नहीं, खाली अरबिक में पढ़ गया, कुछ पता नहीं अल्लाह से क्या बात की। मुनाजात है अल्लाह के साथ, मुनाजात मौला अली की फेवरेट मुनाजात, इमाम खुमैनी की फेवरेट मुनाजात यही दुआ कुमैल और मुनाजात शाबानिया। पता ये चला कि ये आप थोड़े थोड़े रजब महीने में अभी 4-4 5-5 जुमला तर्जुमा पहले पढ़ लो तो शाबान में अरबिक पढ़ सकोगे। जो अरबिक जानते उनके लिए तो कोई मसला नहीं, वो तो अरबिक में पढ़ेंगे, जो अरबिक नहीं जानते उनको तर्जुमा के पहला गौर और फिक्र करना है। थोड़ी थोड़ी पढ़ के भले चंद दिनों में 10 दिन लगे दुआ पूरी करने, मगर पहले तर्जुमा फिर अरबिक। अरबिक क्योंकि मासूम के जुमला की रूहानियत है, मासूम के जुमले अल्लाह से कैसे मुनाजात करते मौला अली। ओके, तीसरी चीज है दुरूद शाबानिया, अल्लाह अकबर, इनकी तो फजीलत बयान की है, इनकी तो फजीलत बयान करते हो हदीस में और उलमा बयान करते। दुरूद शाबानिया जो 15 शाबान की रात को एक मर्तबा पढ़ा जाता है, ज्यादा पढ़े तो नूर जो टाइम होता, 15 शाबान की रात को या मुना मफात जिनान हर किताब में अलमाना हर एक में आपको मिलेगी दुरूद, दुरूद शाबानिया। क्या फजीलत है दुरूद के बारे में, इमाम के से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और आयतुल्लाह सिस्तानी ने सख्त ताकीद बताई कि इस दुरूद की सख्त फजीलत है। शाबान को ज़ोहर की नमाज के बाद हर रोज पढ़ना है, शाबान में डेली ज़ोहर असर की नमाज ज़ोहर खत्म हुई ये ताकीबात में डालना है ये दुरूद, और 15 शाबान की रात आयतुल्लाह सिस्तानी का ये अफजल तरीन दुरूद है। 12वें बाब से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस दुरूद से। 15 शाबान उसकी विलादत है, महीना ये महीना करबला वालों का महीना, करबला वालों का महीना, और इंतकाम लेने वाला है उनका महीना है शाबान का। एक भी वो नहीं है, एक भी गम का दिन नहीं, न शहादत है न कोई गम का दिन, पूरा महीना विलादत ही विलादत, खुशी खुशी का महीना, रसूल का महीना है। और उनमें सब वो लोग पैदा हुए, करबला की अजीम शख्सियतें पैदा हुई, इसे इस महीने की और फजीलत बढ़ गई। एक तो रसूल का महीना, ऊपर से इतना बड़ा महीना हो गया कि आप देखें पहली शाबान में एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब की विलादत, जो अगर शहजादी न होती तो वहीं मकसद हुसैन दफन हो जाता, और सैयद सज्जाद के साथ मिलके थोड़ी मुद्दत के लिए बात नहीं कर सकते, खुतबा नहीं दे सकते सैयद सज्जाद। दोनों इसी महीने में 5 शाबान को इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम और पहली शाबान को बीबी ज़ैनब, ये दो इस कारवान को लेके आगे बढ़ाए, मकसद को फैलाया है इसी महीने में। तीसरी शाबान इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर। चौथी शाबान हजरत अब्बास, देखो हजरत अली अकबर की विलादत खुद तारीखों में मुख्तलिफ तारीख बताती है, मगर विलादत 100% शाबान में यकीन उलमा कहते हैं, तारीख में थोड़ा फर्क है। हजरत कासिम की विलादत इसमें ही वो 12वें माह। अब देखो सब, देखो बीबी ज़ैनब ने बीबी फातिमा का नियाबत में करबला में, बीबी फातिमा की नियाबत नायब बीबी फातिमा। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की नियाबत में करबला, हजरत अब्बास इमाम अली की नियाबत, हजरत अली अकबर इमाम हुसैन की नियाबत, हजरत कासिम इमाम हसन की नियाबत, और 12वें इमाम सबका करबला वाले को भी जारी है, और करबला को इख्तिताम लेके पूरी दुनिया के जन्नत का टुकड़ा बनाएंगे, बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, इन सारे दुश्मनों पर इंतकाम लेंगे। अब देखो सबको अल्लाह ने समेट के माह शाबान में डाला है। इस महीने में जितना नेकी करो कम, जितनी नेकी करो कम, हर मिनट अच्छी तरह गुजरना चाहिए, बहुत कीमती टाइम। अब हम ये देखें, ये 3 चीज को करना है, 3 खुतबा शाबानिया, मुनाजात शाबानिया और दुरूद शाबानिया। टाइम को, टाइम की बात आगे, टाइम कैसे जा रहे इसके नोट करते चले जाना। गलत दोस्ती हो तो जल्दी खत्म कर देना, क्योंकि वो इंसान को बुरे रास्ते पे ले जाते। बुक्स की ना हसद, किसी की अमानत पहुंचा दो, किसी की अमानत न हो ताकि इबादत हमारी उरूज तक पहुंचे। और बुक्स की ना हसद, किसी के हर एक को माफी कर दे, दिल को कल्बे सलीम कर दे, पाक कर दे, ताकि इन सारी इबादतें, इनका असर हमें मिले। रद्द मजालिम देना पड़े, खुम्स नहीं दिया है, सबकी सफाई कर दो। रसूल का महीना है, रसूल की औलाद का हक है, खुम्स उनकी सफाई कर देना चाहिए। तो आप देखें कि ये सारी चीज हमें अंजाम देने की है। फिर कई नमाजें बताई गई, पहली शाबान रात और दिन 15 शाबान से कम नहीं है,
15 शाबान की रात और दिन से कम नहीं है पहली शाबान तकदीर बदलने की रात है। जो पूरा किस्सा है मफातिल जिनान, मेरे पास टाइम नहीं, बस थोड़ा सा याद दिलाऊं, पूरा किस्सा है मफातिल जिनान। जो दुश्मनों पहुंच चुके थे हमला करने के लिए और मोमिनों पहुंच चुके थे मुकाबला करने के लिए, तो दुश्मनों पहली रात शाबान की सन्नाटे वाली रात, और चांद तो दिखता ही नहीं है, तो ऐसे में वो लोग सोए हुए आधी रात के जो सोए हुए तो मुसलमान उस पर हमला करने वाले थे, सोए हुए मुजाहिदीन, उन लोगों ने हमला की पूरी तैयारी कर दी कि वो सोए हम उसको खत्म कर दे। मगर 4 ऐसे मोमिन जिसका नाम भी आपको मफात जिनान में लेके 4 कोने में, जहाँ सब सोए थे 4 कोने में, पहली शाबान की फजीलत समझ के इबादत में मशगूल थे। वो लोग हमला करना चाहा, इन चारों में से इतना नूर जाहिर हुआ, इतना नूर, इतना जबरदस्त, सब उठ खड़े हो गए, सब मोमिन उठ खड़े हो गए और दुश्मनों घबरा गए। फिर मोमिन जोश और जज्बे में आकर हमला करके जीत गए। रसूलुल्लाह ने क्या कहा आखिर में, जब रसूलुल्लाह को बात पता चली तो रसूल ने क्या कहा, 4 लोगों ने पहली शाबान का हक अदा किया, इबादत में गुजारा, सबकी किस्मत उनकी भी बदली, सबकी किस्मत को बदल दिया, वरना दुश्मन उनको खत्म करने वाले। अब सोचे कितनी पहली रात किस्मत तब्दील करने का है, पहली रात शाबान की सदका न भूले, सिले रहम, कुछ अच्छी नेकियां, तबलीग में डोनेशन, जो कितनी अच्छी, और पहली शाबान का दिन, तो पहली शाबान की रात से भी ज्यादा क्यों मौला अली गुजरे, ये भी किस्सा है, ये भी आप कुछ किस्सा है मफात जिनान। मौला कहीं से गुजरे, लोग बहस करते थे तकदीर की, किस्मत की, डिटेल में नहीं जाती हूँ, और मौला अली ने कहा तुम इसमें बहस करते हो, तकदीर जो फजूल बातें, आज पहली शाबान का दिन है, आज तकदीर बदलने का दिन है और तुम तकदीरों पे बहस करते हो, जाओ नेकी करो। फिर मौला ने क्या कहा, जिसने पहली शाबान को, अल्लाह क्या करता है, मलाइकों को फैलाया है ना, तूबा का दरख्त को दुनिया की तरफ उनकी शाखे को झुका देता है, तूबा का दरख्त जो जन्नत में उनको उनकी शाखे को झुका देता है दुनिया की तरफ, जमीन की तरफ। किसी ने सिले राम की एक शाख को पकड़ लिया, किसी ने सदका दिया दूसरी शाख को पकड़ लिया, किसी नमाजें पढ़ी, जिसने रोजा रखा, यानी तुम्हारे इख्तियार में, तुम्हारी तकदीर में तो जितनी शाखें तुमने पढ़नी हो, पहली शाबान को नेकियां मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 70 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा, पहली शाबान और 15 शाबान, इससे भी ज्यादा सब। तो ये फरामोश न हो, पहली शाबान को सदका न भूले, इबादत को न भूले। इसी तरह बोले कि इब्लीस, रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया, आसमान का रास्ता, रसूल की विलादत हुई और इब्लीस का रास्ता आसमान की तरफ बंद कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। उसको इतना गुस्सा है, सबसे बड़ा दुश्मन रसूल का और आज इमाम जमाना का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, कि मैं मोमिनीन को बहकाता रहूंगा कि अहले बैत के करीब ना हो, रसूल के करीब ना हो, क्योंकि नेकी को फैलाना एक तरफ और गुनाह को फैलाना। शैतान अपनी पूरी फौज को पहली शाबान आते साथ पहली रात पूरी दुनिया में हर जगह फैला देता है कि रसूल का महीना है, नेकी फैली, मलाइका नाजिल हो चुका है, तुम नाजिल हो जाओ। सारी शैतान का गिरोह, फौज दर फौज, सब उनकी जमीन में फैल जाते हैं, बदी फैलाते हैं लोगों को। किसी को रोजा रखने के रोकेंगे, किसी को सदका देने में रोकेंगे, किसी को नमाज पढ़ने में रोकेंगे, किसी को अव्वल वक्त नमाज पढ़ने में रोकेंगे, क्योंकि रसूल का महीना है। अब देखो मैं कितना जीतता हूं, तुम रसूल को खुश करोगे, तुम इब्लीस को खुश करोगे, बहुत बड़ी इम्तिहान है। वहां यजीद वो फैलाता है, बदियों फैलाता है इब्लीस, तो वो जक्कूम की शाखे भी अल्लाह जहन्नम में जक्कूम का दर, उनको भी शाखे को दुनिया की तरफ जमीन में फैला देता है। जिसने किसी की गीबत की उसने जक्कूम की एक शाख को पकड़ लिया, किसी ने झूठ बोला एक शाख को पकड़ा, किसी का दिल दुखाया दूसरी शाख, किसी ने बेपर्दगी की, मिस गैदरिंग में शादी में मेकअप वगैरह को देख के गए, उसे एक शाख पकड़। इसी तरह हमारे इख्तियार में अफजलुल आलमीन का, रहमतुल आलमीन का महीना है, शैतान दुश्मनी कर रहा है, हत्तल इनकार जमाना से उनके दूर रखो। उनका बेटा तो है ना जिंदा, उनका बेटा तो है, हमसे ज्यादा इल्म वो रखता है, मैं उसके गाफिल कर दूंगा, उनसे गाफिल करूं। तो इसी तरह हमें इनको भूलना नहीं। 15 शाबान को तो सब जानते हैं, मैं क्या बयान करूं, आप सब जानते हो, टाइम भी नहीं है मुझे सवाल जवाब में जाना है। मगर एक चीज याद रहे
کہ کون سی عبادت. ایک تو نماز, کئی نماز ہے مگر آپ کو وہ رجا ہے مطلوبیت, رجا کی نماز, ساری شعبان رجب کی نماز رجا. جعفر تیار پڑھو تو قربتاً اللہ, جتنی نمازیں جعفر تیار پڑھا گناہ معاف ہو جائے گا, ترقی ہوگی, رزق میں برکت, جان میں برکت, بیماری کا صحت مند. جعفر تیار 15 شعبان تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, کمال نماز ہے. 15 شعبان تو دعائے کمیل, اور 15 شعبان یہ نماز جعفر تیار تو سخت تاکید تکبیر بدلنی, کیونکہ فائل کا آغاز ہوا ہے. ہماری قسمت والی فائل کو آغاز ہوا, امام زمانہ کے پاس فائل آئی ہے مگر آغاز ہے فائل. شب قدر میں اپروول ہے, فائنل اپروول ہے, مگر آغاز ہوتا ہے 15 شعبان. تو علماء ایک چیز بتا دی کہ اس میں پھر قرآن کی تلاوت شعبان میں زیادہ کرو, ماہ رمضان کی تیاری, صدقہ زیادہ دو, اور سب سے زیادہ کہ صدقہ درود, سب سے زیادہ درود پڑھو, کیونکہ رسول کا مہینہ ہے. ہم نے رجب میں استغفار زیادہ کیا, اب شعبان میں استغفار بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ درود ابھی ہم ڈیکوریٹ کر رہے, اب ہماری تقوی کو ڈیکوریٹ کر رہے, ایڈورنمنٹ. ہم گھر خالی پہلے صفائی کرتے ہیں, پھر ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا, درود ڈیکوریٹ کریں گے ہمارے تقوی اور بلند ہوگی, ہماری نیکیاں کو ڈیکوریٹ کرتے چلے جائیں. تو یہ صلوات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود کثرت سے شعبان مہینے میں سب سے افضل ترین عبادت. اور صدقہ, قرآن کی تلاوت, روزہ اور نماز عبادت, یہ سب افضل ترین عبادت ہے. مگر علماء ایک تاکید کرتے, آیت اللہ وحید خراسانی, وہ فرماتے ایک قرآن شروع کرو 15 شعبان, شروع کر دو امام زمانے کے ہدیہ کے لیے, اور ختم کرو 24 شب قدر, کیونکہ ایک روایت میں 24 شب قدر ہے, 40 رات. یہ 40 رات اتنی قیمتی ہے, 15 شعبان کی شب سے لے کے 24 تاریخ رات, ایک ہی ایون نمبر کی رات روایت میں ملتی ہے کہ شاید یہ شب قدر بھی ہو سکتا, باقی ساری اور نمبر. تو 40 رات کو قرآن کی تلاوت کرنا دین کی کرتا زیادہ ثواب. تو 15 سے قرآن ختمہ شروع کرو 24 شب قدر, ایسی قسمت بدلیں گی. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء کا وارث امام زمان, 13 معصومین کا وارث امام, ساری کی محنت کو مکمل کریں گے 12ویں ماہ. سب نے اپنی تبلیغ کی مگر مکمل نہ کر سکے, مکمل کریں گے 12ویں ماہ. تو تم نے 12ویں ماہ کو پورا قرآن 15 شعبان کی رات سے شروع کر کے 24 شب قدر کمپلیٹ کیا, اس کا ثواب 12ویں ماہ کو دیا. تو سمجھو تم نے 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کو انکلوڈ کیا ہے, آٹومیٹیکل انکلوڈ ہو گئے. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام کے لیے ان راتوں میں 40 راتوں میں تقدیر بدلنے کی رات, ان 40 راتوں میں بہت خیال کرنے کو گناہ سرزد نہ ہو, کوئی نیکی پہ نیکی ہو, فضول باتیں میں نہیں, غلط دوستی ہٹا دو, ٹائم کا خیال کرے وغیرہ, قطع تعلق وغیرہ سب کو ختم کر دے. تو بہت سی فضیلت. آخری 3 روزہ کوئی رکھ کے استقبال ماہ رمضان کو استقبال کرتا ہے, آخری 3 روزہ رکھے. گویا امام علی رضا فرماتے گویا اس نے پوری زندگی روزہ رکھنے کے ثواب ملا, گویا پوری زندگی روزے میں گزارا جس نے ماہ رمضان کا استقبال کیا. جب الوداع کرنا ہے تو 6 روزہ غم زدہ ہے. جب ماہ رمضان ختم ہو گئے 3 دن تک کھانے پینے کا کرو, دعوت جو کرنا ہے. 4 شوال سے لے کے 9 شوال 6 روزہ اب الوداع کر رہے, ماہ رمضان کو الوداع. تو گریا ہے, دل جلتا ہے تو 6 روزہ, ویلکم کے لیے 3 روزہ, خدا حافظ کرنے کے لیے 6 روزہ, 4 شوال سے 9 شوال. یہ ساری عبادتیں ہمیں ترقی دیتی ہے, ارتقاء کی منزل دیتی ہے, ہماری اعلیٰ ترین تقویٰ میں جائیں گے. ایک دوسرے کو ہم امر بالمعروف نہی منکر کرتے رہے, بہت زیادہ ثواب ہے امر بالمعروف نہی منکر کا. تو یہ بس باتیں تو تھوڑی کچھ چھوڑ دیں, آپ خود مفاد جنات جس کی کتاب میں یوٹیوب میں جائیں گے, پرنٹ کریں گے, شعبان کی فضیلت حد سے زیادہ ملیں گی. بس میں یہاں ختم کر کے آپ کے سوالات کی طرف جاؤں. میں نے سوچا سب کو ٹچ کروں, مگر زیادہ شعبان کے لیے میں نے سوچا کہ مہینہ آ گیا ہے آلموسٹ, اور رسول کا مہینہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ افضل ترین شخصیت کائنات کی ان کا مہینہ ہے, اسی لیے بہت دل چاہا کہ ان کی فضیلت جتنا بیان کر سکوں اتنا بیان کروں. اچھا, اب یہ دیکھا جائے سوالات آپ کا شروع کرتی ہوں. اوکے, پہلا سوال یہ ہے کہ قبر میں کیا پھول ڈالنا کیا ثواب ہے؟ قبر میں پھول ڈالنا کیا کوئی مستحب ہے کہ اسراف ہے؟ نہ تو مستحب ہے نہ تو اسراف ہے. علماء نے یہ جواب دیتے ہیں کہ نہ مستحب ہے نہ اسراف ہے,
मुबाह है, मुस्तहब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शरीयत में इसके बारे में कुछ है ही नहीं, तो मुस्तहब तो सवाल ही नहीं। मगर इसराफ इतनी छोटी चीज को नहीं माने कि आपको जरा कब्र को डेकोरेट करना है तो मुबाह है, जायज है, मगर सवाब नहीं मिलेगा, सवाब कुछ नहीं मिलेगा, न तो मरहूम को न तो आपको, सवाब न मिले किसी को नहीं मिले, मगर जायज है, गुनाह नहीं मिलेगा, इसराफ भी नहीं होगा। कि स्टूडेंट्स के को फ्रूट सलाद सिखाते थे तो सब बच्चे ने घरे से, सबके घरों से फ्रूट आया तो फ्रूट सलाद हमने सिखाया बच्चों को, स्कूल में टीचर सवाल पूछ रही है, मगर जो अटेंडेंस की जो उम्मीद थी वो नहीं आए सब, तो बहुत बच गया। तो फिर मैं घर पे जाके ले गई, 6 साल हो गए उसको, तो अब मुझे मैं रद्दे मजालिम देना है कि नहीं? उलमा ने कहा नहीं, तो खराब हो जाता, आपने खराब होने से बचा लिया, अब उसकी कोई रद्दे मजालिम नहीं है, ये माफी है क्योंकि घरों से आया था सबको खिलाने के लिए, सब कोई नहीं है, सबने जितने लोग थे वो खा के चले गए, बाकी बचा हुआ ना खराब हो जाता आप छोड़ते, तो में कोई गुनाह नहीं, कोई कफारा नहीं, कोई रद्द मजालिम नहीं। क्या काफिर के पास पैसा रखवाए इसलिए वो सूद देने वाला है, जायज है, वो जायज। काफिर के पास अपने पैसे रखवाया इसलिए कि देखो कुछ शरीयत ने इजाजत दी है, बाप मियां बीवी शौहर दरमियान में वो एक दूसरे को दे सूद की नियत से, और सूद लेना देना जायज, बाप बेटा, बीबी जौजा और काफिर और मुसलमान, वो उनके लिए वो सूद हलाल है अगर रखवाए इस नियत से। सूद का मसला जितना नहीं है जितना नौकरी का मसला, बहुत सख्त, बहुत ज्यादा सख्त है नौकरी का, अभी सबने हराम करा दिया इसीलिए बहुत सख्त। मगर सूद तो बैंक का जायज है, जिसका मसाइला हमने बताया वो तो सब बिल्कुल सही है, तो ये जायज है। अगर काफिर को पैसे दिया, रखवाया वोटेवर के वो सूद देगा तो वो सूद जायज है। मैंने ऐसी मेड रखा है, सवाल पूछती औरत, मैंने ऐसी मेड रखा है, उसे समझौता हो गई, बार्गेनिंग हो गई, मुआयदा हो गया है कि जब मैं सफर करूंगी तो मैं तो तुझे छुट्टी दूंगी, तो मैं उसका पैसे नहीं दूंगी, जब मैं शहर में होंगी तो काम के लिए आएंगे, जितने दिन काम करेंगे उसका पैसा दूंगी, वो राजी है, बस वो राजी है तो खत्म, तो शरीयत को क्या एतराज? आपने बार्गेन किया है कि जितने दिन काम करे कितना दूंगी, जितने दिन मैं सफर करूंगी तुझे छुट्टी, और खुद राजी से काम करे, खुद राजी है इसमें, तो कोई मसला नहीं, ऐसा मुआयदा जायज है। मेरी माँ की कब्र को तोहफा मिला, साल हो गया मगर हमने कोई खुम्स दिया नहीं, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? साल हो चुका है जब तोहफा मिला, अब पहले तकलीफ देखी जाएगी। अगर आयतुल्लाह खुमैनी खामनाई की वो कहते तोहफे पे खुम्स नहीं है, आयतुल्लाह खुई सिस्तानी कहते नहीं तोहफे पे खुम्स है, अगर वो आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीफ में थी तो कहते तोहफे पे खुम्स है। तो अगर इस कब्र की कोई वैल्यू मिल रही है, मार्केट वैल्यू है, ऐसा काम हो रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू है, और दूसरी शर्त कि वो खुम्स में मानती थी, खुम्स देती थी जिंदगी में, तो वाजिब है कि उनकी मीरास से खुम्स दिया जाए, निकला जाए, पहले मीरास फिर तकसीम होगा, फिर माल तकसीम होगा। अगर इस कब्र की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, और वो खुम्स में मानती थी और खुम्स देती थी भी जिंदगी में, तो ये दो शराइत के साथ उस पे खुम्स वाजिब है। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीफ में, आयतुल्लाह खुई में बाकी है, इसमें देना पड़ेगा। वो पूछते कौन सी वैल्यू पे, तो उनको मार्केट वैल्यू तलाश करनी पड़ेगी, उनको मार्केट वैल्यू तलाश पड़ेगी, ऐसा माहिर को वो पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उनका तो मीरास से निकाली जाएगी ये उनका, और फिर तकसीम होगा। तदफीन के वक्त मार्केट वैल्यू देखा जाए, जिस वक्त दफन हुई उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, वो उसके मुताबिक खुम्स देना पड़ेगा, वाजिब है। अच्छा, फिर सवाल है, सॉरी अभी उम्रा के क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोगों के साथ जो लोग उम्रा जा रहे, बहुत लोग उम्रा जा रहे, अभी उम्रे का सवाल है वो पहले खत्म करती हूँ मैं, उसके बाद फिर है और सवाल खुम्स के। उसका पहला सवाल ये है कि मैं सफा मरवा के दौरान थक जाती हूँ, तो क्या मुझे आराम करने के दरमियान इजाजत है? हाँ, थकन की वजह से इजाजत, थक जाती है, टायर्डनेस, तो दरमियान में भी कहीं रुक सकती है थोड़ी देर के लिए, या तो सफा के पास या तो मरवा के पास थोड़ी देर रुक ले, और ज्यादा नहीं कि मवालात टूट जाए, मवालात रोक के ये तो आराम कर ले बैठे नहीं, 5-7 मिनट,
5-7 मिनट आराम करे, फिर चलना शुरू कर दे, तो इतना रेस्ट की इजाजत मिली। मास्क पहनने की इजाजत है, अगर खौफ है कोविड का, नजला जुकाम का, बीमार की खौफ है तो पहनने की इजाजत है। अगर खौफ नहीं है, इम्कान नहीं है बीमारी का, तो फिर उतार दे। जितनी देर खौफ था इतनी देर पहले, फिर हटा दे। मास्क के लिए कि तकसीर के लिए क्या नाखून की से तकसीर कर सकते कि बाल से ही करना चाहिए? आयतुल्लाह सिस्तानी ने एहतियात वाजिब के बिना पर नाखून में मना कर दिया है, नाखून से तकसीर मना किया है, का बाल की तकसीर का एहतियात वाजिब लगाया, अगर कहाँ रुजू का गुंजाइश मिल जाए तो नेल्स की जो अगर दूसरे भी जो है, तो उन लोगों ने पुराने कई मुस्तहब करा दिया था कि मुस्तहब के खिलाफ है नाखून की तकसीर करना बाल से ही, तो बाल के ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि बाल ज्यादा भाई से जीनत होती औरत की, उस जीनत से कुछ काटना है, जीनत को कुछ कुर्बान करना है। तो ये ओके। अभी ये उम्रा का क्वेश्चन मदीना में, हाँ, कि हम लोगों ने बहुत थके हुए मक्का पहुंचे तो रात को पहले सो गए, इहराम का कपड़ा मर्दों तो पहने रहे, हम उतार के रखे और घर के कपड़े पहन लिया, फिर हम सो गए। फिर उठे हम आधी रात के बाद ताकि हम जाए, तो हमने गुस्ल करना था, तो मक्का में हरम में दाखिल करना के तवाफ के वो नियत से करते हैं ना, तो भूले से खुशबूदार शैम्पू होटल में जो था, साबुन था जिसमें खुशबू थी, हमने इस्तेमाल कर लिया भूले से। देखो सख्त है शरीयत उसके लिए खुशबू से एहराम की हालत में, मगर ये भूले से करिए ना तो इस्लाम इनको माफ कर दिया है, उसका कोई गुनाह नहीं है, कोई कफारा। मगर यही उलमा बताते अगर खुशबू को खाना खाए, पान खाए, छालियां खाए जिसमें खुशबू है, छालियां खाए, कोई ऐसी चीज खाए, चाय पिए जिसमें इलायची डाली गई, चाय ऐसा में जफरान, ऐसे खाने में जिसमें जफरान डाला गया है, वो नहीं खा सकता। वो भूले से भी खा ले तब कफारे बकरे का, जानवर का कफारा देना। भूले से भी, या मसला नहीं पता था या तो मसला पता था भूल गए, तब भी खाने में जो अंदरूनी चीज जाते उनमें सख्त है। बहरूनी चीज अगर भूल गए, बहरूनी वो गुस्ल कर दिया, शैम्पू या साबुन यूज कर लिया खुशबूदार, भूले से, माना जानबूझ कर तो कोई नहीं करेगा, जानबूझ कर तो बकरा देना पड़ेगा कफारा। तो ये खाने पीने के लिए सख्त है, वो अगर भूले से भी खा लिया, जिहालत में भी खा लिया, तब भी बकरा कफारा देना पड़ेगा। मगर वो चीज जो कुदरती खुशबू है, जैसे एप्पल है, सब एप्पल में खुशबू है, कोई फल है जिसमें कुदरती खुशबू है, वो खा सकते हैं, मगर उसको सूंघ नहीं सकते। एप्पल को और ऐसे फ्रूट में खुशबू उसको सूंघ नहीं सकते, वो एक अलग चीज है। खा सकते हैं, खुद ब खुद उसकी खुशबू नाक में जा रही है, क्योंकि जब खा रहे तो हरज नहीं, मगर हमने सूंघा नहीं, हमने नाक तरफ ले नहीं गए, हमने खुद ब खुद खुशबू आई, खुद ब खुद, तो जायज है। तो खुशबूदार फल खा सकते क्योंकि उनकी कुदरती खुशबू है, अल्लाह की तरफ कुदरती। वो उसमें चाय में इलायची डाली गई, पान में खुशबू छालिया में डाली गई है, जफरान डाला गया है, तो डाली गई चीज से वो नहीं खा सकते, जिहालत में भी खाए तो कफारा देना है। ये सवाल था। फिर उसका सवाल ये था कि मदीना में हम हैज आ जाए तो कहां तक हम जा सकते हैं? आयतुल्लाह सिस्तानी ने उसका जवाब दे दिया, मदीना के आप सिर्फ जहां से जूतियां उतारते हैं, अब बड़े गेटों में दाखिल होने से पहले तक इजाजत है, अंदर दाखिल बिल्कुल नहीं होता। हालांकि रसूल के जमाने में छोटी मस्जिद थी, मगर जो एक्सटेंशन होता गया सब मस्जिद में शामिल, अकॉर्डिंग आयतुल्लाह सिस्तानी ने बता दिया। तो एंटर नहीं हो, जहां जूतियां उतारे तो उसके बाहर की जगह सारी वो सहन में, वहां बैठ सकते, इबादत करे जो करना है। हैज वाली औरत, निफास वाली औरत अंदर दाखिल, पूरी मस्जिद माना गया, वो दाखिल नहीं हो सकती कहीं भी बाहर, जूता उतारते उससे पहले तक, जूते से लेके दरवाजा आते वहां अंदर दाखिल नहीं हो सकती। बस ये मैंने आखिरी सवाल था, मैंने हज वाले का खत्म कर लिया, उम्रा वाले का सॉरी। ओके, अब तकसीर में क्या हम किसी का बाल काट सकते? पहले अपना कर लिया तो फिर सही है, पहले अपनी तकसीर कर ली, आपकी तकसीर, अब दूसरे की मदद कर रहे तो ठीक है, उनको काट रही, नियत वो कर रही, काट आप दे रहे बाल तो ठीक है, मगर जब तक अपनी तकसीर नहीं हुई तो किसी का बाल नहीं काट सकते। वो कहते कि मैं नमाज की तकबीर तो एहराम, अभी मुतफरिक सवाल पे आ गए, मुझे उम्रा की फिक्र थी,
को मैंने खत्म कर दिया। तक वो सवाल किए थे, मैं तकबीरतुल इहराम से पहले दुआ इस्तिखारा पढ़नी चाहती हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं? हकीकी इस्लाम ने उसको इस्तिखारा किया है, तलबुल खैर। इस्तिखारा का मतलब क्या? तलबुल खैर, अल्लाह से हम खैर तलब करते। तो नमाज तो ऑलरेडी खैर है, फिर क्यों? क्या बेहतर नमाज में खैर करती कि मेरी नमाज कबूल हो जाए, मेरी नमाज बेहतर हो जाए, मेरी नमाज में कंसंट्रेशन हो जाए। तलबुल खैर, अस्तगफिरुल्लाह, मैं खैर तलब करती हूँ, रहमत ही, तेरी रहमत के साथ, आफियत के साथ, अमन अमान, सुकून और चैन के साथ। ये सारी मल्टीप्लाई इतनी अजीम है कि चौथे इमाम ने छठे इमाम ने दुआ बताई है कि हर काम से, अच्छे काम से करो। आप मदरसा जा रहे, चंद मर्तबा पढ़ेंगे, क्यों? कि वहां रियाकारी भी हो सकती है, वहां हसद हो सकता है, टीचर्स में आपस में मजलिस पढ़ने जाते हैं, हो सकता है कि शोशा आ जाए, रियाकारी आ जाए। खुदावंदा ये मैं करने काम नेक करने जा रहे, अस्तगफिरुल्लाह, खैर तलब करती हूँ रहमत के साथ और आफियत के साथ। तो बहुत अच्छी इबादत है, बहुत अच्छी। हर नमाज के अंदर भी उसको करना है कि मेरा हुजूर कल्ब रहे, उसको कहते हैं। मैं सद्दे में भी पढ़ सकते, बिल्कुल, ये एक दुआ है, एक दुआ है। हम कर सकते कि क्या कि मेरा कंसंट्रेशन रहे, हुजूर कल्ब मिले, खुशू रहे, मेरी नमाज मकबूल हो। सद्दे में इतने उरूज में पहुंचे, नमाज की रूह है, तो अल्लाह ये कबूल हो जाए, सद्दा हो तेरे लिए हो, हम कुछ बने, इनकसारी पैदा हो, वगैरह वगैरह। ये खैर तलब करे, अखलाक से खैर तलब करे। तो बिल्कुल हर काम से पहले आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सदका। इसलिए चौथे इमाम ने तो शिकायत की हमारे शिया से, मुझे हमारे मानने वालों पे ताज्जुब लग रहा है, हम तो छोटी छोटी बातें में दुआ इस्तिखारा पढ़ते, तलबुल खैर, वो तो बड़े बड़े काम ऐसे कर देते हैं। हकीकी इस्तिखारा ये है, हकीकी तलब। वो कुरान का इस्तिखारा, तस्बीह का इस्तिखारा, इस्लाम ने उसको पसंद किया भी नहीं, एडवाइस किया भी नहीं। ये है हर काम से पहले करो, काम अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा ओके। तो एक्सीडेंट हुआ था तो इंश्योरेंस मिला था। औरत कहती है मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इंश्योरेंस मिला, और मुझे कहा गया कि इंश्योरेंस पे खुम्स नहीं है। तो मैंने बाद में मेरे 2 बच्चों में बांट लिया, इस इंश्योरेंस के पैसे दोनों में डिवाइड कर दिया। तो क्या मुझे अभी खुम्स देना पड़ेगा? देखो, कभी भी पहला तो आयतुल खुई और किसिस्तानी में गिफ्ट पे खुम्स है, तोहफे पे खुम्स है। तो इंश्योरेंस अभी तो मिला है, अभी तो तोहफा मिला है। अगर 1 साल रहा, या आप वर्किंग वूमन है, आपकी खुम्स की तारीख आ गई, तो जो बच्चा या पूरा बच्चा तो खुम्स होगा, फौरन नहीं होगा। या इंश्योरेंस मिला, फौरन कभी नहीं होगा, या खुम्स की तारीख पे, या तो 1 साल जो अगर काम नहीं करती है तो वो बच्चा या पूरा रकम पर तो देंगे। मगर उसके सवाल से तो लगे उसको मिला और थोड़ी मुद्दत में ही दोनों बच्चे को दे दिया, अपनी मिल्कियत से निकाल दिया, तो कोई खुम्स नहीं, अभी भी नहीं है। अब बच्चों की जिम्मेदारी, अगर उन्होंने साल भर रखा, उनके तो तारीख ही फिक्स करनी पड़ती, बालिग बच्चे को तो तारीख ही, क्योंकि अभी तो काम नहीं करते, तो उसकी तारीख पे खुम्स उनकी जिम्मेदारी के बच्चों को मसला सिखाए कि अगर बच्चा है तो वो खुम्स देना फरामोश ना कर दे। खुम्स को एक चीज पर खुम्स वाजिब नहीं था, अभी साल नहीं हुआ तो मैंने किसी को तोहफा दे दिया, तो वो सही है, वो सही है। अगर खुम्स वाजिब होने के बाद आप दे तो पहले आपको खुम्स देना है, फिर तोहफा देना है। मगर वो कहती है कि अभी साल नहीं हुआ था, यानी इसके सवाल ऐसा लिखती है कि खुम्स अभी वाजिब नहीं हुआ था, फिर आपने किसी को दे दिया, तो बिल्कुल अच्छा काम किया, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये सवाल रह गया। अच्छा, मदीना वाले एक रह गया, अभी ये देखा कि मदीना में अब आजकल ट्रेन हो गए, डायरेक्ट मदीना से मक्का ले जाती, हमें एहराम पहनना है मस्जिद शजरा में, और मदीना शहर में है बस ट्रेन का स्टेशन। अगर हम जाते हैं मस्जिद शजरा में, 14 मासूमिन हमेशा वहीं करे है, वहीं एहराम पहने, तो हमें सुन्नत मासूमिन करना है। मगर क्या हम वापस पलट सकते हैं? स्टेशन वापस मदीना आना पड़ेगा। मस्जिद शजरा 7 किलोमीटर है, बिल्कुल आ सकते हैं। तमाम महाराजे ने इजाजत दी है कि आप पूरा मदीना, आप कहीं भी एहराम की नियत कर सकते हो, होटल में भी एहराम की नियत कर सकते हो, पूरा मदीना इजाजत है। मगर शजरा में हाईएस्ट सवाब है, हद से ज्यादा फजीलत। जाओ वहां मस्जिद शजरा में एहराम की नियत तलबिया वगैरह करके वापस आओ स्टेशन, और फिर सीधी भले ट्रेन आपको मक्का ले जा रही। अच्छा, ये हो गए। अभी सवाल जो है, अगर कोई ज़ियारत इमाम हुसैन और उनकी 2 रकात पढ़ना चाहिए तो क्या वो रजा की नियत से पढ़े कि कुर्बतन?
کچھ سوالات آ گئے مگر میں جواب دوں گی. دیکھو جو حدیث سے قبر کے پاس زیارت وارثہ پڑھنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا وہ قربت نہیں لوگ اور محترم روایت. مگر گھر میں سے پڑھنا زیارت وارثہ 2 رکعت یہ سب رجا رجا کہ گھر کے بارے میں اچھی چیز ہے. مگر روایت ہے قبر کے پاس تو جو زیارت ہم قبروں کے پاس پڑھتے تو قربتن والی ہے. جو زیارت ہم گھر بیٹھے پڑھتے وہ رجا والی ہے. کیونکہ حدیث سے جتنی قبر کی بات کر رہا ہے مگر اجازت دی ہے علماء مراجع کہ تم پڑھو مگر رجا کی نیت سے پڑھو. کتنی اچھی چیز ہے. سلام کے ذریعے امام کی قربت حاصل ہے مگر رجا کی نیت سے پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز بھی زیارت بھی سب رجا کی نیت سے. پھر کہتے کہ صلاۃ الاخفاتی ہے جس کی قرات آہستہ سے کرنے کی. تو ہمارے بہت اندر ہی اندر پڑھتے نہیں. واجب ہے کہ تمہاری سرگوش وسپر تمہاری کان تک پہنچے. اس سے زیادہ ثواب ہے کہ تم خود سن سکو اگر سناٹا ہے. مگر آواز وسپر کا کان تک پہنچانا واجبات میں. وہ کہتے مجھے پتا نہیں تھا مسئلہ تو معافی مل گئی ہے. واجب غیر رکنی کی اس میں معافی مل گئی. مگر ابھی سے کوشش کرے کہ ایسا وسپر ہو اگر فین کی آواز نہ ہو کسی کی آواز نہ ہو تو آواز کان تک پہنچے اور تم خود اس کی وسپر سن سکو. اوکے گرم پانی سے وضو جو دھوپ سے گرم ہوا ہے اس سے وضو کرنا کیا مکروہ ہے؟ دیکھو یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. علماء کہتے کہ ڈائریکٹ سورج کے ریز سے گرم ہونے والا ڈائریکٹ. ہمارا پانی تو ٹنکی میں اس میں ڈائریکٹ ریز کہاں جاتا ہے؟ ٹنکی تو کورڈ ہوتی ہے. تو ڈائریکٹ ریز پانی پہ پڑ اس میں جرمز ہوتے ہیں اس میں بیماری آتی ہے. وہ پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. مگر ٹنکی والا سورج کی گرمی سے گرم ہوا وہ مکروہ نہیں ہے. نہیں وہ بھی جو سورج کے ڈائریکٹ گرم ہوا وہ بھی اگر گرماش ہٹ گئی تب بھی مکروہ ختم. جتنی دیر گرم ہے تب پرابلم ہے تب مکروہ رہے گا جو ڈائریکٹ ریز آف دا سن آتا ہے. مگر ٹنکی میں گرم ہوا سورج کے تو وہ مکروہ نہیں ہے. خمس کی تاریخ کیسے فکس کرے؟ جس دن ہم نے کام شروع کیا اور جس دن کی پہلی تنخواہ ملے گی. آیت اللہ سیستانی نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ پہلی جس دن آپ نے کام شروع کیا آپ کام شروع کیا اس نے کہہ دیا ہے. آیت اللہ خامنہ مجھے لگتا ہے ناٹ ویری شیور وہ کہتے پہلی تنخواہ ملے تھا. مگر سیستانی کا مسئلہ تو ہے کہ آپ خمس کی تاریخ جس دن آپ نے کام شروع کیا وہ والا. وہ کہہ رہی مجھے شک ہے کہ 1 سال ہوا ہے کہ نہیں تو نہیں ہوا ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. مگر یقین ہے کہ شک ہو گیا. سوری خمس وقت 1 سال ہو گیا یقین ہے. مگر خمس دیا کہ نہیں تو نہیں دیا. یقین ہے کہ خمس کہ 1 سال ہو گیا. دیا کہ نہیں تو نہیں دیا دینا پڑے گا. اس کو 1 سال ہوا کہ نہیں تو نہیں ہوا ہے. یہ سوال. دکان میں اتنا سارا مال بچا ہوا ہے خمس کی تاریخ آ گئی مال بکتا بھی نہیں ہے کیش بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ ویلیو بھی کیسا نکالے مال کی؟ دیکھو آپ کو وکیل سے ملاقات جس کی تقلید کر رہے ہو نا جس مرجع کی اس کے وکیل سے ملاقات کرو اس کے نائب سے ملاقات کرو کہ یہ آپ کو بتائے گا. کیوں کہ آپ کو کہیں لون لے کے خمس تو دینا ہی پڑے یا تو مہلت لے کہ دیکھو مال بچا ہے دکان میں بکتا بھی ابھی نہیں اور میرے پاس کیش بھی نہیں کہ میں بچاؤ مال کا دوں اور کیش ویلیو بھی نہیں آتے. ویلیو تو کسی بھی ماہر کے پاس جو ایسے بزنس کرتے ہیں ماہر سے نکلوا سکتے. ویلیو نکالنا وہ لیٹسٹ ویلیو پہ دینا. پیسہ نہیں ہے زمین پڑی ہے پیسہ نہیں ہے زمین پڑی ہے 1 سال ہو گیا دینا پڑے گا. سال کی آخری واجب فوری ہے. اگر نہیں دے سے جلدی وکیل سے ملاقات کرے نائب سے وہ آپ کو قسطوں میں کر دے زمین کو پاک کر دے کہیں سے لون لے کے پہلے حق زہرا دے دے. حق زہرا کو ڈیلے نہیں کر سکتے. پھر آپ قرضہ دیتے چلے جاؤ جو آپ نے کسی سے قرضہ لیا خمس دینے کے لیے. خمس واجب ہے فوری. آج ابھی خمس واجب ابھی دینا ہے یا تو مہلت لینا ہے. تو یہ ساری سوالات ایک قسم کا ہے. تو پھر آپ کو بہت خیال کرنا ہے کہ آپ نے کہا بچا ہوا راشن کا بھی خمس ہے کیونکہ جس کی مارکیٹ ویلیو ملتی ہے. شکر ہے آدھا کلو بچا آدھا کلو بھی بیچی جاتی. تو وہ کہتی گاڑی میں پیٹرول بچا ہے خمس کی تاریخ آ گئی. بچا ہوا پیٹرول پہ خمس ہوگا. کیوں؟ تھوڑا بھی پیٹرول وہ بیچتے ہیں
آپ دیکھیں گے کتنا لیٹر جو مارکیٹ ویلیو میں کتنا لیٹر بیچتے ہیں، تو مارکیٹ ویلیو ہے، تو گاڑی میں بچا ہوا پیٹرول اس کا بھی خمس آپ کو دینا پڑے گا. میرے پر فدیہ واجب ہے، روزے کا فدیہ مگر میں نہیں دے پاتی، کیا میرا شوہر میری مدد کر سکتا ہے؟ اسی طرح میرے پاس کپڑے ہیں بچے ہوئے، نہیں پہنوں، سال ہو گیا، میں ورکنگ وومن نہیں ہوں، فدیہ بھی روزہ نہیں رکھ پائی، سال کے اندر قضا نہیں دیا، میرے پاس فدیہ کا تاخیری واجب ہے، میرے پاس خمس کپڑوں پہ واجب ہے، میرے پاس کیش نہیں. آپ کا ہسبینڈ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، کیا تحفہ دے، آپ کو گفٹ دیا، پھر نیت آپ کریں گے، ان پہ واجب نہیں ہے کہ آپ کے خمس میں اپنی مدد کرے، نہ ان پہ واجب ہے کہ آپ کا فدیہ کفارہ دے روزے کا. اگر نہیں رکھ سکے، اپنے روزہ نہیں رکھ سکا، نہ اپنے فدیہ کا پیسہ نہیں، تو استغفار کرو، میں جتنے پیسے ملے گا تو میں دے دوں. مگر زیور ہوتا ہے، ایکسٹرا زیور ہوتا ہے، کچھ بن ضروری زیور بیچ کے آپ فدیہ بھی دے سکتے ہو، مگر شوہر ہیلپ کر سکتا ہے، پر نیت آپ کریں گے، آپ مالک بن گئے مال کا، آپ مالک بن گئی اس مال کا، پھر آپ دیں گے آپ کا فدیہ، روزے کا فدیہ، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری اس میں نان نفقہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ کا خمس ادا کرے، کہ آپ کا فدیہ کفارہ ادا کرے، تو وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، تو بہت اچھا، یہ تو ٹو گڈ ہوگا کہ اگر وہ تیار ہو جائے آپ کی مدد کرنے کے لیے، انشاءاللہ تو خیر ہے. اوکے، یہ اوکے، ایک سیدانی ہے، بس یہ آخری سوال ہے، پھر آپ لوگ کے بعد جو ایک سیدانی ہے، غیر سید سے شادی کری ہے، تو بچہ تو غیر سید ہوا، آخرت میں تو سید ہوں گے، سیدانی کے بچے جو غیر سید سے شادی کی، آخرت میں سب سید ہونے والے، مگر دنیا میں غیر سید ہے تو ان کو صاحب سعادت نہیں مل سکتا، صاحب سعادت پکا باپ سید ہونا چاہیے، پھر ماں بھلے نے غیر سیدانی، باپ سید ہو، غریب ہو، یتیم بیوہ، ان کا حق بنتا. اب یہ سوال پوچھے، میں سیدانی ہوں، میرے شوہر کو کوئی کام نہیں ہے، ابھی ہمیں بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹا غیر سید ہے، مگر مجھے اگر کوئی دے رہا ہے، سیدانی کو دے رہا ہے بیٹے کی شادی کے لیے، تو لے سکتی ہے، وہ مالکہ بن رہی، وہ غریب سیدانی ہے، بیٹے کی شادی کر، مگر حیثیت کے مطابق کرے، اتنا ہی صاحب سعادت لے جتنی ان کی حیثیت کے مطابق شادی کرے، نہ کہ اسراف کرے، گناہ نے کبیرہ کرے، دوسرا سید کا حق مارا جائے گا. تو کم سے کم مدت میں جیسی ان کی حیثیت ہے اتنا ہی پیسہ لے سکتے، کیوں کہ سیدانی کو دیا جائے گا، بیٹا بڑے غیر سید، ان کو شادی کروانی ہے کہ باپ کو کوئی جاب نہیں ہے، جاب لے سکتے. یہ آج کا ہمارا سوال الحمدللہ سب ختم ہو گئے، جو پرانا بھی پڑا تھا وہ بھی میں نے آج ختم کیا ہے. اب آپ کو کوئی باکس میں کوئی سوال ہو، تھوڑا باقی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو دیکھو تو کوئی سوال ہے تو ہم اس کو انجام دے دیں انشاءاللہ. پہلے رجب میں جو نیاز بنائی جاتی ہے، جی آنٹی، جو مولا کی نیاز 22 رجب کی بنائی جاتی ہے، ہاں، آلدو کی مختلف ڈیٹس میں جب بھی رجب میں کسی بھی دن مومن کو آپ کی آواز بات چیت نہیں ہوگی، پہلے زور سے نہیں سن سکتی. ہیلو جی طاہرہ آنٹی، آپ ہلو، مجھے ہاں، سن پا رہی ہیں؟ ابھی الحمدللہ، جی جی جی. جی آنٹی، سوال یہ ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کی نظر بنائی جاتی ہے رجب میں، اب ہاں اگر ایک خاتون حائضہ ہو اور اس کو وہ نیاز ریڈی کرنی ہے، تو کیونکہ پاکیزگی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور پیریڈز میں تو خواتین کوشش کرتے قریب بھی نہ جائیں، تو شرعی طور پہ بتائیے گا کیا وہ گناہ کی مرتکب ہوگی اگر وہ نیاز کی یہاں پہ ٹکیاں بنائی جاتی ہیں، یا وہ کھیر جو بھی میٹھا بنایا جاتا ہے تو اس کو فرائی بھی کرنا ہے، وہ آٹا گوندنا بھی ہے، تو کیا وہ گوند سکتی ہے یا وہ فرائی کر سکتی ہے؟ اس کا رول بتائیں کہ جو حالت حیض میں نظر کتنا انجام دے سکتی ہے اوکے، اس کو. میں تو سمجھی کہ یہ پرابلم ختم ہو گیا، ابھی تو علم کتنا پھیل چکا ہے، ابھی تو کتنی مدرسہ اور کتنا، چلو کوئی بات نہیں، بالکل پکا سکتی ہے، کھا سکتی ہے، آٹا گوند سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، جب سب پڑھا جاتا ہے سفرے میں بیٹھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتے. کیوں کہ دیکھو آپ توضیح المسائل کھول دو، جتنی چیز حرام ہے اس کی فہرست ہے حیض میں، جس کی چیز مکروہ ہے فہرست ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ہمارا مراجع بھول گئے لکھنے کے لیے، ہم یاد دلائیں ان کو؟ دیکھو آپ کو دیکھنا ہو کہ حرام ہے کہ مکروہ ہے، توضیح المسائل کھول دو، اسلامک لاز کھول دو، آپ حرام کی لسٹ کیا کیا چیز حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، قرآن کے الفاظ کا مسکن حرام ہے، اللہ کے نام کو حفظ کرنا حرم میں جانا، مسجد میں جانا حرام، پوری فہرست ملیں گی. پھر آئیں گا مکروہ کی فہرست، مکروہ ہے کہ قرآن کی زیادہ اتنے 7 آیت سے زیادہ پڑھنا، یا ایک آیت بھی پڑھا باہر اختلاف ہے.
और इसमें मेहंदी लगाना सर पे मकरू है, डाई लगाना सर पे हाथ पे सर में मकरू है, ये आपको मिलेगा कि क्या क्या मकरू है। तो उसमें ना हराम की फेरिस्त में ना तो मकरू की फेरिस्त में नजर न्याज पकाना खाना सारा बिल्कुल। आप वुजू करके, वुजू करना अच्छी चीज हर हाल में, आप वुजू करके आप पकाएंगी तो कितना ज्यादा सवाब मिलेगा, किबला रुख पकाएंगे तो और सवाब मिलेगा। हालांकि वुजू के बगैर भी पका सकती है, मगर सवाब को बढ़ाते चले जाओ। पाको पाकीजा अपने को, हाथ को पाक किया, वुजू किया, किबला रुख बनाया, नूरुन अला नूर, इंशाल्लाह कबूल होगा। तो खुलूस देखा जाता है कि हमने खुलूस किया अल्लाह के लिए, इमाम के लिए हमने किया है, इमाम को सवाब पहुंचा रहे, ये है। न शोशा के लिए, न वहां बेपर्दगी होने देंगे, हमें सब जैसे शरीयत चाहती इस तरह हम करेंगे। तो नूरुन अला नूर, मोमिनीन को खाना खिलाना भी बात हो गई, कितनी बड़ी इबादत है। जी जी, जज़ाकल्लाह आंटी, क्योंकि ये बहुत से लोग, ये कल्चरल प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं। कि बाकी तो देखा जाता है अगर एक घर में एक ही खातून हो तो फिर अगर वो ना बना सके तो वो नजर का क्या करेगी। तो इसलिए उसने पूछा, क्योंकि वो अपने हाथ से मोमिनीन को खिलाना भी चाहती है, उसका शौक भी है। जी, तो आंटी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हवाले इसी तरह अलम को छूना, इसी तरह अलम को बोसा देना, ताबूत को चूमना था, सब इजाजत। आपका दिल नहीं मानता वो अलग है, मगर शरीयत अलग है, दिल अलग है। एक ही दिल है। लोगों तो इस्तिहाजा में की तरह दिल नहीं मानता, हम नमाज पढ़े तो क्या वो नमाज इस्तिहाजा में, खून में हम कैसे नमाज पढ़े? हम तो नहीं पढ़ते इस्तिहाजा में। देखा, अपनी मई चलाते, दिल अलग है, शरीयत अलग है। शरीयत इजाजत देती है, आपका दिल नहीं मानता तो आप दिल को फॉलो करो, मगर शरीयत इजाजत देते है, आप खुद सवाब से खुद महरूम हो जाते हो। सवाब कितना ज्यादा है, खुद हाथ से पका के, बाहर से ऑर्डर देने के बजाय खुद अपने हाथ से पकाया, उससे क्या बड़ा सवाब है। कि इमाम का न्याज आपने खुद पकाने का सवाब अलग है, बाहर से मंगवा लेना अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। अनुम फातिमा। जी जी आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो रोजा रखा होता है, माह रजब में भी मुस्तहब रोजे रखे जाते हैं, रोजे की हालत में अब सवाल ये कि ये यहाँ पर इमाम की न्याज देने के लिए एक मुजजा, सब कॉन्टिनेंट में एक मुजजा पढ़ा जाता है और वो लकड़हारे से क्या मुजजा मशहूर है। तो वो इनका पूछना ये है कि अगर उस कहानी को सुनाया जाए और क्योंकि वो मौला से मंसूब की जाती है, तो क्या मेरा रोजा बातिल हो जाएगा या रोजे की क्या हालत रहेगी अगर हालत रोजा में वो कहानी बयान करते? वो मौजिजा तो मोतबर नहीं है, मोतबर नहीं। आप वहां बैठिए, सिर्फ कान में आवाज आता है तो आपका रोजा बातिल नहीं होगा, क्योंकि बस एक रिवायत है जो जिसको उलमा ने मोतबर नहीं माना है, ऑथेंटिक नहीं माना है, और आप वहां बैठे सुनिए तो आपका रोजा बातिल नहीं होगा। और अगर ये पढ़ रही हैं? हाँ, ये मुझे नहीं पढ़ रही है, पता भी है कि ऑथेंटिक नहीं है, ये मुझे पूछवाना पड़ेगा, मैं आलिम से पूछवाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, ये सवाल मैंने कभी नहीं पूछा है, तो मैं अब मैं तक जाके रहूं, कैसे खुद ब खुद जवाब दे दूं वो मुझे, क्योंकि रिवायत गलत है वो पता है, या ऑथेंटिक नहीं, उलमा ये कहते ऑथेंटिक नहीं है, तो बस उसका मतलब क्या। मैं इंशाल्लाह पूछ के मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी जवाब, इंशाल्लाह। जी जी ताहिर आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था मैयत के मुंह में अकीक रखने के हवाले से कि जर्द अकीक रखना चाहिए। तो अब इनका सवाल है, क्या जर्द अकीक ही जरूरी है या कोई और अकीक भी रखा जा सकता है? यानी क्या और अकीक नहीं, और कौन सा अकीक सवाल पूछा? जर्द अकीक ही जरूरी है या अकीक कोई भी अकीक नहीं, जर्द शरत नहीं है, जर्द खाली फजीलत जर्द उलमा बताते, मगर ब्लैक आता है, ब्राउन आता है, बस सच्चा अकीक होना चाहिए। ये एक बाल रखे देख लो, शायद है सच्चा किसी सोनार को पूछो, देख देगा आपको, तलाश करो, बस सच्चा अकीक होगा, मोती होगी तो वो फवायद नहीं मिलेगा। ओके आंटी। आंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तुजी इट्स रिटन that namaz is makruh if recited when there is a photo in the front of you, but it's also written that namaz is makruh in a room where there is a photo. Please clarify the difference between both. Okay. दोनों में डिफरेंस उलमा ने क्या बताया कि पीछे होगा साइड में कि जो नजर नहीं आता तो मकरूह है, मगर सामने होगा तो ज्यादा मकरूह है, शदीद मकरूह, क्योंकि अटेंशन जिस चीज डाइवर्ट करती है इंसान को हुजूर कल्ब, कंसंट्रेशन जिसको हुजूर कल्ब कहा जाता है अरबिक में, उनमें कमी आ जाए हुजूर को। नमाज को असल कंसंट्रेशन, अल्लाह ने कहा कि खड़ी रहे तो आंख तार देखे, मोहर को देखे, रुकू में जाए तो दो पैरों को दरमियान में देखे, सजदे में जाए तो आंख खुली रखे, नाक को देखे, कुनूत में हथेली को देखे, तशहुद और सलाम में थाइस को देखे। क्यों कहा है? कंसंट्रेशन के लिए, आंख कहीं ना देखे, मगर जो हमने मुस्तहब है इन जगह में देखो, कहीं कहीं देखना मकरूह है।
सामने होगा तो ज्यादा अटेंशन दूर होने का, आईना सामने है तो ज्यादा मकरू होगा, खुद को देखेंगे, खुद का अक्स, तो सामने का मकरू ज्यादा है, साइड में भी मकरू है, पीछे भी मकरू है, मगर लेस. Okay, Auntie, your next question है, can you please repeat what to recite for the protection against hasad? Just before the question you were telling, so please repeat what to recite for the protection against hasad. बेसी सूर्य फलक मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, उसको रिपीट करना. सूर्य फलक पढ़ो, फिर आखिरी लाइन आ जाए, खुदा बचा मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, हासिदों के शर से हमें तू बचा के रख. तो ये दुआ जो आप ये सूरा पढ़ेंगे फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा, मगर जब मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद पढ़ेंगे तो आप रिपीट करें तो इंशाअल्लाह आपका हासिदों के शर से आप बचते रहेंगे. ला हौला वला कुव्वत ज्यादा पड़े तो हासिदों का असर से भी बचते रहेंगे इंशाअल्लाह. सदका दो आप, अजान जोर से घर में दो, जोर से अजान तो हर बला के दूर, बद नजर दूर होती है, बीमारियां दूर होती है, बरकत और रहमत से घर फैल जाता है. हर टन आवाज बुलंद से अजान, कैसी बीमारी लोगों के घर में से रुखसत हुई है, जोर से अजान, बेशर्त गाना का आलत मौसीकी न हो, ये हराम चीजें न हो घर में, तो फिर आप देखें जोर से अजान दे, आप देखें मौजिजा पे मौजिजा देखें. जी आंटी, ये क्वेश्चन है कि अगर तकसीर के टाइम पर नाखून मालूम नहीं था मसला पहले कि क्या है, तो अगर किसी ने नाखून काटे तकसीर के टाइम पे तो क्या करना होगा? कोई कफारा अदा करना होगा? नहीं, कफारा नहीं, रुजू कर दे, क्योंकि आयतुल्लाह सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई है ना, तो शुबैर जंजानी ने कहा है एहतियात मुस्तहब है, इनके खिलाफ है, यानी मुस्तहब है कि नाखून को न काटे, तो शुबैर जंजानी को रुजू कर ले. हालांकि सिस्तानी ने फतवा नहीं दिया, एहतियात वाजिब लगाए कि नाखून को नहीं, मगर अभी तक कर लिया तो शुबैर जंजानी को रुजू कर ले. तो फिर क्योंकि वो कहते हैं मुस्तहब है कि नाखून न काटा जाए, बाल काटा जाए, बेहतर यही है, तो रुजू कर ले इंशाल्लाह, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कफारा कुछ नहीं. जी आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है that I bought frozen pizza and didn't realize it had pepperoni and it's not halal. Can I give that to neighbors who are Christians? या देखो, क्रिश्चियंस के भी कोई बुरी चीज देना, अंदर ऐसी हराम चीजें जो नुकसानदेह है, आपको पता है, तो क्रिश्चियन लोगों में वो उन लोगों में भी जायज नहीं है लिकर नहीं, मगर फॉलो नहीं करते शरीर, बहुत नुकसानदेह चीज है, पोर्क का खाना वगैरह बाद में तो जानवर को दे देना सबसे बेस्ट है. मैं सबको कहती हूँ काट करके, जहाँ जानवर है, कुत्ता घूमता है, जहाँ जानवर हो उनको दे दो, ताकि कचरे के डब्बे में अनाज ना फेंको, तो जानवर को देना सबसे बेस्ट है. जो चीज हमारे लिए नुकसान दे हम दूसरे के लिए अच्छा सोचे, भले वो खुद खाते हो. जी आंटी, क्वेश्चन है, if we buy a house or shop for future investment for our kids, so should we give 25% of homes on that property? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा, स्ट्रेट अवे खुम्स दे दिया, जितने की प्रॉपर्टी थी आपने खुम्स दे के पाक पैसे से लिया तो कोई मसला नहीं है. फिर अगर आपने पाक पैसे से नहीं लिया, एंड ऑफ द ईयर आप खुम्स देंगे तो भी 20% होगा. एंड ऑफ द ईयर आप नहीं देंगे उसी साल में, उसी साल के पैसे तो 20%, मगर पैसे दूसरे साल का दिया, पैसे दूसरे आने वाले साल में से दिया, आप साल में नहीं दिया, बेदरकार हो गई, भूल गए, और दूसरे साल की आमदनी से दिया तो 25 होगा, क्योंकि वरना वो 5% बचत में जाता. आपने इसी साल के पैसे से आपको देने का था, जो आपका आखिरी महीना था, तारीख आ गई या 12 में, आप भूल गए, नहीं दिया, दूसरे साल दिया तो 25%, इसी साल से दिया तो 20%. सबसे बेस्ट में तो कहते बिजनेस शुरू करो, पाक पैसे से करो, खूम्स पाक पैसे से बिजनेस शुरू करो, जमीन खरीदो, पहले पाक से करो, भले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, फिर बाद में बहुत बरकत होंगी. खूम्स में गड़बड़ बहुत होती करती हमारी कम्युनिटी, जब भी सैयद इतनी तकलीफ में, वरना एक सैयदा तकलीफ में न होते जो उनका हक हम खाते रहे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आंटी, क्वेश्चन है कि सलाम पहले तो अर्ज कर रही हैं, सलाम टू ताहरा आंटी, ये पूछ रहे हैं बैंक की जॉब के मसाइल जो आंटी ने बताए हैं सूद के हवाले से, इंशाल्लाह उस पे हम अर्जेंट एक स्टेप उठा रहे हैं, और दुआ कीजिएगा कि अब हमने स्टेप ले लिया है कि अल्लाह ताला इस मंजिल को हमारे लिए आसान करे, क्योंकि जैसे ही हमने मसला शरई सुना है, हमने अब बस दीन की खातिर कदम उठा लिया है. माशाल्लाह.
अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुआ ने के लिए सुना, कहा है। आपने सैयदा अनम फातिमा को सब ने सुना। प्लीज सब लोग मिलके इन कपल के लिए दुआ करेंगे। इन लोगों ने कितनी हिम्मत की है, यकीन किया है कि शरीयत और फौरन छोड़ना, उसमें बहुत बड़ा सीना चाहिए, बहुत बड़ा ईमान चाहिए। तो माशाल्लाह हम सब मिलके जितने लोगों ने सवाल सुना, उन लोगों ने कदम, सब उनके लिए भले नाम नहीं जाता, हम कहीं जिस कपल ने कदम उठाया खुदा उसकी रिस्क में माल में मालो माल कर दे, जल्द अज जल्द ऐसी नौकरी मिल जाए, ऐसा बिजनेस कि खुदा तुम मौजिजा दिखाना इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का और बीबी खदीजा ताहिरा का तुम मौजिजा दिखाना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन। और आंटी इन्होंने साथ ही कहा है कि उस बैंक में जहां पर ये जहां जिसके उस पार्ट में सूद का कोई भी इसमें मसला ना हो, क्या बैंक के उस हिस्से में काम करना जायज होगा जिसमें सूद का कोई अमल दखल ना हो? नहीं, बिल्कुल जायज। उसी बैंक में अगर उन लोगों को शिफ्ट कर रहे ऐसी जगह में जहां सूद का कोई लेन देन नहीं, ना अकाउंट्स, ना कुछ, ना साइन, कुछ नहीं, यकीनन बहुत इंशाल्लाह बहुत बरकत मिलेगी। बैंक में जॉब मना नहीं है, सूद के साथ बैंक मना है। बैंक इन इट सेल्फ में जॉब करना जायज है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हुकूमत, मगर मसला सूद की जर्रा सी देन दे, सिग्नेचर भी नहीं, तो फिर आप जरूर उसी बैंक में काम करो जहां सूद से कोई लेन देन नहीं है, जरूर और बरकत मिलेगी, हलाल हलाल रिस्क सब हलाल हो जाएगा इंशाल्लाह। आंटी एक शॉर्टेस्ट क्वेश्चन आया, मेरा ख्याल है विद इन अ वर्ड ही आप आंसर कर देंगी। रिमाइंडर दिया है इन बहन ने मुझे कि वो खुद अर्न नहीं करती, तो फिर वो सदका कैसे कर सकती हैं? इफ अ लेडी डू नॉट अर्न, हाउ कैन शी गिव सदका? देखो, खुद अर्न नहीं करती है तो उनके पास पॉकेट मनी मिलता होगा, कहीं ईदी किसी ने दे दिया तो थोड़ा पहले सदका दे दे। पता इमाम जाफर सादिक का एक फर्जन था, बहुत बीमार हुआ था, और वो चलो वो स्टोरी छोड़ देती, टाइम कम है। एक बेटा था, बहुत तंगदस्ती में दिन गुजारता था। इमाम उनको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तू सदका देने में कंजूसी करता है। कम बाबा, मैं तो मुश्किल से घर भी नहीं चलता है मेरा, खाने का नहीं तो मैं सदका का, बस इसीलिए बरकत नहीं होती है। खाने तुम भले तू थोड़ा कम खा, मगर देखो तेरे कैसे तू मालो माल हो जाता है। उसने सदका शुरू किया, कुछ मुद्दत के बाद एक उनका दोस्त का इंतकाल हुआ ना, उनका वसीयत नामा खोला गया, तो क्या कि मेरा 1/3, मेरा 1/3 मेरे इस दोस्त को दिया जाए, सैयद दोस्त को, इमाम जाफर सादिक का फर्जंद को। उन्होंने 1/3 मिल्कियत, इतनी बड़ी मिल्कियत मिली। जैसे उसने सदका शुरू किया, थोड़ा सदका शुरू किया, और देखे सदके माल में बरकत है, सदके के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। आप कपड़ा आपके पास है तो कपड़े का सदका दे दो, आपके पास कोई अनाज है, कोई आपको तबरुक मिला तो आप थोड़ा आधा तबरुक आप खाओ, आधा तबरुक आप सदके में दे दो। यानी आपको सदका दे, सदका जबान का उसका भी है, आप किसी की अच्छी नसीहत दिया, इल्म दिया, सबका। मगर अभी इस वक्त माल की बरकत में माल का सदका देना है, रिस्क में बरकत में रिस्क में से सदका देना है, माल में से, तो ये आपको तो करना ही पड़ेगा। गरीब तरीन भी सदका दे, गरीब भले घर में कम खाए मगर दे, फिर रास्ता खुलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सदका, बला दूर, सदका बीमारी दूर, सदका बरकत रहमत, ये ज़कात है, एक किस्म की ज़कात है, मुस्तहब सदका, तो उसको ना छोड़ा जाए प्लीज। आप सदका किसने, अगर फिर नहीं है तो फिर आप देखो कि आपके पास ऐसे कपड़ा है, जरूरी नहीं है आपको, तो उसको बेच लो, फिर थोड़ा देते रहना उसमें से, या कोई कपड़ा दे दो सदका। आपके पास 5 सूट है तो 1 सूट दे दो सदके का, आपके पास कोई पर्स एक्स्ट्रा है तो पर्स दे दो सदका में, आपके पास कोई चीज है ज्यादा है वो दे दो सदका में, हर चीज सदका में दी जा सकती है। जी आंटी ये पूछ रही हैं कि घर पे जो अलम लगा हुआ है क्या वो टच कर सकते हैं? इनकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। हाँ बिल्कुल अलम से गले लगाओ, असर होगा, क्योंकि जिनसे मंसूब है, आपने हजरत अली अकबर का अलम रखा है, हजरत अब्बास का रखा है, कि आपने इमाम हुसैन का, हजरत इमाम हसन का, जिसका रखा है, आपकी ये चीज शरई नहीं है, ये शरीयत से इसका कोई निस्बत नहीं है, मगर उससे हमें बहुत बड़ी रूहानियत मिल सकती है, कि उनसे मंसूब हो गया अलम, एक अजीम शख्सियत से मंसूब हो गया, आप उसे गले लगाए, चूमा, उसका असर मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी नियत पे है, आपके खुद के यकीन पे है। भले शरीयत का जुज है कि नहीं, ये कई चीजों में नहीं देखा जाता, हमारा अकीदा देखा जाता है। हमारा अकीदा इन चीजों में क्या है कि हम आजादारी में जो चीज करते, नजर न्याज करते, अलम है, लाश है वगैरह, वो शरीयत हमारे पर छोड़ दी, तो आजादारी करो, तुम्हें अलम जो चाहे, हमने छोड़ दी, तो हम लोग इससे मासूम से निस्बत करते, अजीम शख्सियत और निस्बत, तो उनका असर होगा। तो पीरियड में क्यों छोड़ा जाए, पीरियड में हमें ज्यादा रिस्क की जरूरत है, एक तो नमाज से महरूम है, एक तो इतनी बड़ी इबादत से महरूम है, तो बल्कि और ऐसी इबादत करनी चाहिए कि जो हमारे अकीदा जिसमें स्ट्रॉन्ग है उसको करना चाहिए। Taira aunty, I asked that question
suggestion of the teacher now, the students that brought the fruits, the school did not provide the fruits. The students brought those fruits. Yeah. So I made little. So now those fruits belong to the students, but I did not return it to them. So I took it home. So is it all right? It's all right because they said अगर वो लोग मौजूद नहीं थे ना वहाँ, वो सब चले गए ना. They all went away ना. बच्चे फ्रूट्स लाए थे, उनकी थोड़ी सी सैलेड बनाकर उनको खिला दिया, बट थोड़े बहुत फ्रूट्स रह गए थे, जस्ट लाइक पाइनएप्पल टिन वाज देयर एंड सम ऑफ द बनानास, एंड सो आई कुड हैव रिटर्न इट टू दोज स्टूडेंट्स कि भाई अब आप ये वापस ले जाओ, बट आई डिड नॉट एंड आई बॉट इट होम. Oh, you knew कौन से स्टूडेंट से, और you knew हाँ, हमने मंगवाया था, बच्चों से मंगवाया था that you bring 1 can of pineapple, you bring few apples, you bring few bananas. So they bought. Now some of them I used in the salad, but since my partner did not come, I had to do all the work, so I made little bit. Matlab I gave all of them a small bowl, whoever wanted to eat, but fruits was left. Now I want to know, is it now अभी आपको नहीं पता मालिक कौन था, you don't know who is the मालिक, कुछ नहीं पता. Those students were the owner, but now it's like 6 years back. So can't you contact them and ask for forgiveness? Each and every student. कि मेरे से अनजान में ये गलती हो गई, कोई थाने में अकेली बच्ची थी तो मैं लेके चले गए. I could have returned to you because I knew the owner. Yes, I could. You knew the owner, बस मैंने सवाल में समझा नहीं था. हाँ, that's why I wanted to ask today only because next time. अगर आपको ऑनर मिलता है तो आप उनको माफी मांग लो, वो माफी कर देंगे. मगर अगर ऑनर नहीं मिल रहा है तो फिर इसकी वैल्यू का अंदाजा लगा के फिर रद्द मजालिम होगा. मालिक नहीं मिल रहा है तो वही तो ठीक है, तो रद्द मजालिम में आएगा. But this was 6 years back, and now students must have because I'm no more teaching over there. So students must have left, or I couldn't go back to school and ask my students. Just try. Go to the school and just try once. Maybe you can get their contact, their telephone number, the email, or maybe WhatsApp. Just try. At least Allah saw that you are tried to find the owner. But finally you could not find the owner. Then naturally you will just give the cash. At least you try. Okay. At least you try. And who shall I give the wakil, right? किसी भी मुश्तहिद, ये तो रद्द मजालिम तो किसी भी मुश्तहिद का वकील, नॉट नेसेसरली जिसकी तकलीद करते हैं, ये तो एनी मुश्तहिद के वकील, उनको रद्द मजालिम का. ह्यूज फैन, जज़ाकल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम. बस ओके डन. अब क्लोज करते, क्लास बंद करते सब. अस्सलाम वालेकुम आंटी. जी पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने लाउड अजान घर में देने की फजीलत बताई, तो क्या खवातीन भी दे सकती हैं लाउड अजान? बिल्कुल. ना मेहरम भी सुने, देर जेठ घर में वो बहनों वो सुने, ना में कजिन हो वो भी सुन सकते अजान की आवाज. खाली नमाज की आवाज के लिए मसला है ना मेहरम. अजान की आवाज, इकामा, कुरान की आवाज, कसीदा, मजलिस की आवाज सब ना मेहरम सुन सकता है. तो आप जोर से औरत भी दे, टर्न बाय टर्न करो. इतनी आप देखेंगे आपके घर में बरकत और रहमत कैसे फैलती है देखना. मगर खुम्स भी पहला देखो उसमें घर बनना हो, बस पहले खुम्स को देखो, नमाज अवले वक्त हो, एक फिर देखो अजान कितनी आपको काम आती है. ओके. तो इंशाल्लाह जब भी वापस क्लास शुरू होगी आपको इत्तला दी जाएगी. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सवाब में शामिल कर दिया. बस हम दुआ करते खुदा को दिखा. माह रजब का महीना एंड हो रहा है. बाबुल हवाई की शहादत हमारे सामने आ गई चुकी है. परवरदिगार बाबुल हवाई मुसअब ने जाफर का वास्ता, जो मरीज है उनको शिफा आजिल और सेहत कामिल अता कर. परवरदिगार जो रिस्क के लिए परेशान है वास्ते मोहम्मद तकी अल जवाद का वास्ते रिस्क में वसअत अता कर. परवरदिगार जो बे औलाद है वास्ते शहजादी फातिमा चराबी अल असगर का, वे बाबुल हवाई ज़तर असगर का वास्ते जिको नेक साले औलाद अता कर. परवरदिगार जो शायद जो जवान हो चुके वास्ते चीज़ बीबी फातिमा बीबी मासूमा कौम का उनका बेहतरीन कुफ अता कर दे, रिश्ता अता कर दे. परवरदिगार जो हज ज़ियारत उम्रा के लिए मुतमन्नी है वास्ते तुझे शोहिदा करबला असीरान करबला हले को हज ज़ियारत उम्रा नसीब कर. परवरदिगार सबसे अजीम दुआ, सबसे आला दुआ, फातिमा का फर्जंद, तेरी आखिरी हुज्जत, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नाज़ मददगार में शामिल फरमा. आमीन सुम्मा आमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व उम्मीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअददि मा अहाता बिइल्मिक असफ़. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु.